نیک لوگوں پر مسلط کی. اس نے خلیفہ سے حکم لیا ہے اور میں مسلمان ہوں اور امیر المومنین کا فرما بردار ہوں. میرے ساتھ چلیں ابن رسول اللہ. اور حسین کو رسول خدا کا بیٹا سمجھتے ہو، پھر بھی اس شیطان کی اطاعت میں انہیں ذلت پر مجبور کر رہے ہو. جانتا ہوں تم فاطمہ کے بیٹے ہو، لیکن دیکھ رہے ہو کہ 1000 سپاہی میرے ہمراہ بھیجے گئے ہیں تاکہ خلیفہ کے حکم کی تعمیل کروں جو رسول خدا کا جانشین ہے. مرد تمیمی، خدا کے فرمان کی تعمیل کر اور رسول خدا کی وصیت کے مطابق قرآن اور اہل بیت کی پیروی کر. حور ابن یزید، کیا یہ اطرت رسول خدا کا قافلہ نہیں؟ یہ ابن رسول اللہ، ہم بہت پیاسے ہیں. کیا آپ کے خیمے میں پانی نہیں؟ ہم بہت پیاسے ہیں. ہمارے ساتھ 1000 جنگی سپاہی ہیں جو دن بھر سے بہت پیاسے ہیں. امیر، وہاں تمہارے سپاہی پیاس سے ہلاک ہو رہے ہیں. گھوڑوں میں سوار اٹھانے کی طاقت نہیں رہی. سورج کی تپش اور گرمی کی شدت سے فوج میں بھی اب طاقت نہیں رہی. سرداروں نے کہا ہے کہ ہمیں اجازت دو تاکہ ہم پانی تلاش کریں. یہاں کئی میلوں تک پانی کا نام و نشان نہیں ہے. ہم 1000 جنگجو سپاہی قادسیہ کے مقام پر ابن نمیر سے جدا ہوئے. ابن نمیر نے وہیں خیمہ لگا لیا اور ہم نے امیر کے حکم کے مطابق حور ابن یزید کے ساتھ حسین کی تلاش میں حجاز کے صحراؤں کو عبور کیا، یہاں تک کہ تھکے ہارے پیاس کی شدت سے موت کے دہانے پر پہنچ چکے تھے کہ حسین ابن علی کا چھوٹا سا قافلہ مل گیا. کہا تھا حسین کو لے کر آنا. حر ابن یزید کا خط مجھے نہیں چاہیے. حور ابن یزید نے حسین سے بات چیت کی تھی اور چاہا تھا کہ وہ کوفہ آئیں، امیر کے ہاتھ پر بیعت کریں. ہم جانتے تھے کہ وہ نہیں مانیں گے. ان کے ساتھ کتنے افراد تھے؟ ہم نے گنا نہیں، ان میں صرف بنی ہاشم کے لوگوں کو پہچانا. علی ابن ابی طالب کے بیٹے اور دوسرے افراد دکھائی دیے. اس کے باوجود ان کی تعداد ہم سے کئی گنا کم تھی. پھر کیا کیا تم لوگوں نے؟ صرف تماشا. میں نے تمہیں ان لوگوں پر مسلط کیا تھا. ہم پیاسے تھے، ابھی عبداللہ کے پاس پانی ہی پانی. ہم سب کو سیراب کیا. اب وہ کہاں ہیں؟ حور نے حسین سے چاہا کہ وہ راستے کا انتخاب کریں، نہ حجاز جائیں اور نہ شام. ابھی عبداللہ نے وہی کیا اور پھر حور ابن یزید نے ارادہ کیا کہ اس چھوٹے سے قافلے کے ساتھ رہے جب تک کہ امیر کا حکم پہنچے. امیر، ذرا خط کو تو پڑھو. حور نے تم سے کچھ چاہا ہے. پڑا ہے. جاؤ. حسین کوفہ نہیں آ رہے ہیں. راستے کے انتخاب نے میرے سردار کو مشکل میں ڈال دیا ہے. حجاز کو لوٹ جائیں یا امان دیں، یا سرحدوں کو عبور کر کے دوسروں کی سرزمین میں پناہ لیں یا امان دیں. عمر، اگر تو ہوتا تو کیا کرتا؟ نہیں، مجھے نہیں معلوم. امیر، حسین تیری گرفت میں ہے. اگر تو نے کوفہ کے ان تمام ہنگاموں پر قابو پا لیا ہے تو حسین سے بیعت دینا بھی تیرے لیے مشکل نہیں. مجھے چن، پھر دیکھ ایک ہی رات میں اسے بندے ہاتھ تیرے سامنے لے آؤں گا. نہیں، وہ طاقت کے استعمال کو صحیح نہیں سمجھتا ابن ذیلجوشن. حسین ابن علی ہانی ابن عربے نہیں. تو پھر حسین کا کام تیرے ذمہ ہے. عمر، میں؟ ہاں تو.
लेकिन मैंने तो रई जाने की तैयारी भी कर ली है और मैंने अपना सामान भी समेट लिया है और आज का दिन भी मैंने अमीर से खुदा हाफिजी के लिए रखा है। बस मैंने कह दिया है उमर, हुसैन को कोफे तक पहुंचा दे, फिर जा। तुम जानते हो उबैदुल्ला, मुझे हुसैन के रूबरू मत कर। उबैदुल्ला, मेरे वालिद और उनके वालिद में रफाकत थी। मैं खुद भी बचपन में हुसैन के साथ खेला करता था। बस मैंने कह दिया है ना उमर। अगर ना जाऊं तो तेरी मर्जी, शिमर को भेज दूंगा। जा उमर, तेरी मर्जी। तुझे जो हुक्मनामा दिया है उसे वापस कर दे। हुक्मनामा? रई और इस्फहान की हुकूमत का हुक्मनामा दे दे। मेरे पास नहीं है। लेकर आ और कह दे कि ऊंटों से सामान वगैरह उतार दें। महल के निगहबानों से कह दो कि आज से उमर इब्ने साद इब्ने वकास से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, इसे महल में भी ना आने दिया जाए। जा उमर, जा उमर। अमीर, मैं तो तुमसे बहुत वफादार रहा हूं और अमीर उल मोमिनीन यजीद की बैत में हूं अमीर, और चाहता हूं उसका हम रकाब रहूं। तू इसके लायक नहीं। चाहे तो हूं। खलीफा तुझसे चाहता है कि तू हुसैन पर वार कर और उसके फरमान को हर चीज पर फौकियत दे। क्या आज तक ऐसा ना था? रई और इस्फहान के विलायत का इनाम कुफे के फितने के खात्मे के एवज था। तो क्या कहते हो उमर, हुसैन को गिरफ्तार करने जा रहे हो या हमारा हुक्म लौटा रहे हो? नहीं, कुछ वक्त तो मुझे सोचने का। जो तूने कहा तुम्हारे हुक्म की तामील होगी। कुछ वक्त तो तुम्हारे हुक्म की तामील होगी। जाओ, मौला देता हूं। कल सुबह सूरज निकलने से पहले मैं तेरे इंतजार में रहूंगा। भाई, अभी अब्दुल्ला ने फरमाया है कि नमाज उनके साथ अदा करोगे या तन्हा? उनके साथ नमाज पढ़ूंगा। और उन्हीं की इक्तदा करूंगा। हैया अलस्सलाह, हैया अलस्सलाह, हैया अलल फलाह, हैया अलल फलाह। और फिर यूं हुआ कि उन जवानों ने जिन्होंने हुसैन इब्ने अली का रास्ता रोका वुजू करते हैं और आपकी इक्तिदा में नमाज कायम करते हैं।
नमाज के बाद अबी अब्दुल्ला ऊंटों के पालान पर खड़े होकर वास करते हैं। ऐ लोगों, मैं परवरदिगार को गवाह बनाता हूं, मैंने असकुत तुम्हारी तरफ रास्ता इख्तियार नहीं किया, बल्कि यके बाद दीगरे तुम्हारे खुतूत मिलते रहे। बसरा और कूफा के लोग रात दिन मेरे घर पर दस्तक देते रहे कि हमारा कोई ईमान नहीं, और हमारे शहरों में हिदायत का चराग खामोश है। इसीलिए मैं इस सरजमीन पर आया हूं। लोगों, अगर तुम अपने अहद पर कायम हो तो मैं तुम्हारे शहर का रुख करता हूं, और अगर मेरा आना तुम्हें गवारा नहीं तो यहीं से अपने दियारे जहां का सफर बांधता हूं और वापस लौट जाता हूं। अच्छा उमर, अब तू ही है और तू, तेरे एक हाथ में बहुत सी जमीनों का फरमान और दूसरे हाथ में तो तेरे इस हाथ में ईमान कहां है? हुसैन से इमारत मिलेगी। कैसे ख्यालात हैं? फिर कौन सी चीज? कोई नहीं। देख रहा है उमर, तू साद इब्ने अबी वकास का बेटा है, कहां बैठा है? और जो मरजान का बेटा है वो कहां? खूब, तो क्या कर सकते हैं? हुकूमत उसके हाथ है और तेरे वलायत के फरमान पर उबैदुल्लाह की मोहर। ये उबैदुल्लाह के लिए आखिरी खिदमत होगी जिस पर ये इमारत गिरवी है, जो कि हुसैन के काफिले को रोन दे और उसे जबरन कूफा ले आए। या हकीकत में उमर, क्या तू पैगंबर का खून बहाने को तैयार है? अच्छा उमर, ना उमर, ना। तूने देखा है किस तरह हुसैन पैगंबर के आगे दौड़ते थे और मुस्कुराते थे, और रसूल खुदा की आंखों में फर्जंद फातिमा को देखकर आंसू भराते थे। तूने खुद देखा है हुसैन पैगंबर के मेंबर पर जाकर उनकी गोद में बैठ जाते थे, या कोई खजूर वगैरह जो उनसे लेते थे तेरे साथ तकसीम करते थे। तूने खुद देखा है। क्या करोगे? उससे लड़ोगे? नहीं उमर, नहीं। इस सफर को छोड़ दे उमर, छोड़ दे। छोड़ दूं? वलायत जो ली है उसका क्या होगा? अगर मैं अभी अब्दुल्ला को गिरफ्तार करने ना चाहूं तो वो किसी और को मेरी जगह भेज देंगे। पागल हो गया है पिसरे साथ।
साल हो गए हैं, किस्मत तेरे साथ न थी। अब जबकि ये भागा हुआ सर्कस ऊंट तेरे सामने ज़ानों पर है, इस पर कमन डाल दे। किस चीज का इंतजार है? किस चीज का इंतजार है? उन वहमों को अपने से दूर कर। इब्न साद, इब्न ज़ियाद तेरा इंतजार कर रहा है। हाँ, तो तू है मेहरान। कूफे के दरवाजे पर फौज तैयार खड़ी है। इब्न ज़ियाद ये जानना चाहता है कि फरमान लौटाओगे या फिर फरमान? लौटा दूं? खलीफा से बागी हो जाऊं? और अगर ऐसा करूं तो खुदा ना बख्शे। तेरे लिए घोड़ा ले आया हूं, तलवार और फरमान भी। कैसा फरमान? कि हुसैन इब्न अली पर चढ़ाई कर दो। कोई आ रहा है। सलाम हुर। सलाम नाफे इब्ने हिलाल, कूफा से आ रहे हो? हाँ, कूफे से आ रहे हैं। बताओ किस लिए आए हो? अभी अब्दुल्ला से मिलने आए हैं। ये मुमकिन नहीं नाफे, जिस रास्ते से आए हो वापस लौट जाओ। देख हुर इब्ने यजीद, क्या तू मुझे पैगंबर के बेटे से मिलने को मना कर रहा है? मैं तो तुझे मुसलमान समझता था। अब भी हूँ। फिर मुझे अभी अब्दुल्ला से मिलने दे। नहीं नाफे, लौट जाओ नाफे। हुर, नाफे इब्ने हिलाल हमारे दोस्तों में से हैं, इन्हें इनके हाल पर छोड़ दो। दोस्त ये मेरे भी हैं, लेकिन जो ये चाहते हैं उसे अंजाम देने पर मैं कादिर नहीं। लौट जाओ नाफे। नहीं हुर, ये कभी हुसैन के साथ न थे, लेकिन अब हैं। फिर तुम्हें कूफा भेज देता हूँ। हुर्दू ने कहा था जो अभी अब्दुल्ला के साथ होगा उनसे रियायत करेगा। ये इमाम के साथी हैं, और जो उनके साथ हैं हम उनका ऐसा दिफा करेंगे जैसे खुद का। बहुत अच्छा, अब तुम खुद मुख्तार हो, साथ रहो या लौट जाओ, ये तुम खुद जानो। देखा भाई,
इस काम का अंजाम जो तुम चाहते थे वो ये ना था। सब हिमायती हैं। यकीन नहीं आता, यकीन नहीं आता। अभी अब्दुल्ला के साथ कितने लोग हैं? ज्यादा नहीं, शायद 70 अफराद हैं। कल तो इससे ज्यादा थे। भाग गए। भाग गए, रात ही को भाग गए थे। हर एक के पास बहाना था। कर्ज की अदायगी, बीवी बच्चे अकेले हैं, काश्त न की गई जमीन और छोड़ा हुआ कारोबार, हर एक के पास बहाना था। ऐसा लग रहा था जैसे शहद की मक्खियां अपना छत्ता छोड़कर उनसे जुदा हो रही हैं और सहरा की तारीकी में गुम हो रही हैं। हाँ, ये है हजार रंग कौम। इनमें से हम भी तो थे जिन्होंने उनका रास्ता रोका, और पहल हम ही ने की जो उन्हें ऐसे रास्ते पर ले गए। और हमने उन्हें इस मौत की वादी में पड़ाव कराया। पूछा, इस बयाबा का नाम क्या है? मैंने कहा, करबला। मैंने देखा कि वो सजदे में गए और इबादत में मशगूल हो गए। हम भी वही करते हैं जो हुसैन ने किया। आखिरी फर्द था जो भाग रहा था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इन्हें मारोगे। जब यकीन हो गया शायद वो मान जाए। जानता हूँ कि नहीं मानेंगे। तुझे कैसे पता? कल रात की दुआ से। तो फिर जंग करेंगे। उससे पहले अमीर को यही कहा था जो इस शख्स ने कहा। तमाम रात हम उनकी निगरानी भी कर रहे थे। बहुत अच्छा, जाओ अब यहां से चले जाओ। नहीं सुना क्या कहा? चला जा, दफा हो जा। बहुत अच्छा, सिवाय जंग के कुछ नहीं सोचते। काश ऐसा ना करते, काश ऐसा ना करते। मैं चाहता था वो मान जाए, मान जाए। जरा बताना आज कौन सा दिन है? जुम्मा, मुहर्रम की 10 तारीख। मनहूस दिन है, मनहूस दिन है। उमर, फैसला कर। अमीर का फरमान वाज़े और बेपर्दा है। हुक्म मानेगा या नहीं? अमीर का फरमान। हाँ हाँ, अमीर का फरमान। अमर इब्ने हज्जाज, तू सिपाह के सीधे हाथ की तरफ का कमांडर है। शिमर, तू उल्टे हाथ की तरफ। यजीद इब्ने हारिस, तू सवारों का सिपा सलार है। और शफ्स इब्ने रफी पैदल फौज पर मुतय्यन।
कुछ रह गया है जो नहीं कहा गया? परचम कौन लेगा? मेरा गुलाम रब्बी जो मेरे साथ होगा। अब जाओ और सब चीजों की तैयारी करो। और तू रुक जा। उबैदुल्लाह के फरमान में एक ऐसी बात है जो तुझे बताना जरूरी है, और ये बात बताने में मुझे शर्म आती है, लेकिन इसके सिवा कोई चारा नहीं। अमीर का फरमान है जिसकी तामील करना है। सवारों के एक दस्ते से कहो नई नालबंदी करें। जब हुसैन कत्ल हो जाएं तो उनकी लाश पर घोड़े दौड़ाए जाएंगे।